Yeah guys, namaste and welcome back to my channel. So today in this video we are going to talk about something very relatable. That is things every hosteler should carry with themselves. So first time living in a hostel and wondering what to pack. Don't worry. Here is a complete ultimate checklist of must have things for every hostel. So first of all comes the room and your comfort essentials. That is bucket and a mug, first of all, for especially Indians. And other things is blanket, bed sheet, pillow cover, extension cord with multi-plug. Okay. And if there is not mattress provided by the hostel, then you have to also buy mattress. Lock and key is also very important for the safety purposes because हॉस्टल में गाइस बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है तो इसलिए प्लीज लॉक एंड की तो लेके जाना एक्स्ट्रा ही लेके जाना ठीक है. Now comes the study and tech essentials like your notebooks, your pen, whether it depends on you, like whether you use ball pen or gel pen. Your pencils, they're all stationary actually, and study lamp also, and the power bank, your headphones, your charger. These are the most important thing. Next thing you can carry with yourself is the electric kettle because you all know that Maggie with chai is equal to hostel life. So चाय हॉस्टल वार्डन मना भी करे बट ठीक है छुपा के रखना ही है. रखती है सब रखते हैं है ना. जब ये तो मजा आएगा ना हॉस्टल लाइफ में जब जब तक चोरी छुपे खाना नहीं बनाया मैगी नहीं बनाई कुछ कूट पटांग हरकतें नहीं करी तो फिर क्या मजा हॉस्टल लाइफ. इजंट इट. उसके अलावा आप रख सकते हैं लैपटॉप अगर आपके पास है तो. Also carry that steel tiffins with yourself and water bottle. That is very important. Also carry the snacks like dry fruits, the biscuits, and ready to eat snacks. Okay. Also the very important thing is coffee or tea sachets for late night study sessions. Next comes the hygiene. So the basic things we all know that soap, shampoo, toothbrush, toothpaste. Also carry detergent with yourself and a scrubber for washing clothes. Also the sanitizer and deodorant. And your roommates will literally thank you for carrying these. Don't forget to carry the towel, both big and small ones. So carry two slippers with yourself, at least two. एक रखना हॉस्टल यूज के लिए एंड वन कीप फॉर द आउटसाइड यूज. जैसे कुछ सामान लेने जाना हो बाहर तो यू विल नॉट वेयर शूज और सैंडल्स ना तो एक स्लीपर रखना बाहर के लिए और एक रखना हॉस्टल के लिए. ऑल्सो आप अपनी मर्जी से कैरी कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर लाइक शूज सैंडल्स जो भी आपको पसंद हो. एंड lastly the most important thing is don't forget to keep the umbrella or raincoat, especially if you're coming to Espinosa because यहाँ पर पूरे साल तो रेनी सीजन ही रहता है. कभी भी बारिश हो सकती है तो अम्ब्रेला इज मस्ट नीडेड हेयर. उसके अलावा आप कपड़े रख सकते हो अपने लाइक नॉर्मल टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स और टी शर्ट पैजामा फॉर नॉर्मल वेयरिंग. ठीक है. उसके अलावा कॉलेज जाने के लिए एज वी ऑल आर द मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस का एकदम ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स पहन के एकदम जा रहे हो या फिर जीन्स या फिर क्रॉप टॉप पहन के पेशेंट को देख रहे हो. ठीक है. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नैनीताल. यहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते बिकॉज एथिक्स होते हैं सबके अपने. जैसे कि पेशेंट आ रहा है उसकी क्या मेंटालिटी है वी डोंट नो. और जैसे कि हम सब प्रोफेशनल्स हैं तो हमें प्रोफेशनल में भी ड्रेसिंग अपना रखना चाहिए. हम जीन्स टॉप या फिर वन पीस ड्रेस पहन के या क्रॉप टॉप और स्लीवलेस टॉप्स पहन के ऐसे बैगी जीन्स पहन के ऐसे पेशेंट को नहीं जा सकते देखने. तो अपने एक एथिक्स को ध्यान में रखते हुए आप नॉर्मल ट्रेडिशनल सूट्स वगैरह जो कुर्तीज नॉर्मल चलती है नॉर्मल सिंपल कुर्तीज जो चलती है शॉर्ट और लॉन्ग वो पहन सकते हो. ठीक है. और बाकी नॉर्मल वेयरिंग
जो आपको नॉर्मल डेज में पहनना हो तो आप पहन सकते हो, पजामा टी शर्ट कुछ भी पहन सकते हो उसमें आप, बट कॉलेज जा रहे हो तो कीप इन अ माइंड दैट यू आर प्रोफेशनल, तो इस हिसाब से ही ड्रेसिंग करना, इस हिसाब से ही अपने कपड़े रखना, ठीक है। Now at last comes the personal touch. A family photo is must needed because हॉस्टल में रह के घर की याद आना इज वेरी कॉमन थिंग। जब स्टार्टिंग में तो दोस्त बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं लोगों के, हाँ लगता है कि अरे वाह एकदम लास्ट तक ये दोस्ती चलेगी, ये वो घूमने जा रहे हैं, हर जगह साथ जा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, पूरी एकदम यारियों वाली फीलिंग आती है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे सबके रंग दिखते हैं और ये ग्रुप छोटा सा चला जाता है, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि ये परसिस्टेंट रहेगा कभी भी, तो वो एक अलग ही ब्रेक डाउन होता है सबका फर्स्ट ईयर के बाद, धीरे धीरे पता चलता है रियलिटी सब चीज़ों की। ओके, सो एक फैमिली फोटो तो ज़रूर रखना अपने साथ, ठीक है। उसके अलावा अपनी हॉबीज़ के हिसाब से कर सकते हो, रख सकते हो, लाइक पेंटिंग कलर्स, मेरे पास इतने सारे पेंटिंग कलर्स बनाए बिकॉज आई लव पेंटिंग एंड स्केचिंग। इसके अलावा नॉवेल्स, यस, I love reading novels, so I have kept many novels with myself. आप भी रख सकते हो, अगर आपको गिटार बजाने का शौक है तो आप गिटार रख सकते हो, अपनी स्केच बुक रख सकते हो, या जो भी आपकी हॉबी है वो आप रख सकते हो, अपने साथ ला सकते हो उसको, बिकॉज ऐसा तो नहीं है हर टाइम पढ़ाई करते रहोगे, आपके माइंड को रिलैक्स रहने की भी ज़रूरत है। तो उस टाइम पे जो बेस्ट थिंग लगती है वो है या तो कहीं पे वीडियो कॉल पे बात करना, या फिर अपने हॉबीज अपने पैशन को टाइम देना। ओके, so thank you for watching guys, and don't forget to like and subscribe to my channel। और सारे अपने हॉस्टल में जो फ्रेंड्स आपके रहते हैं या फिर जाने वाले हॉस्टल, उन सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, एंड कमेंट बिलो वन थिंग दैट यू थिंक you can't live without in a hostel।